1 year Bible reading plan Matthew 4 chapter or Genesis 9, 10 और 11 chapter. 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान मत्ती 4 अध्याय और उत्पत्ति 9 अध्याय 10 अध्याय 11 अध्याय. जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से. Matthew 4th chapter. Christ fasteth, is tempted, and overcometh. The beginneth to preach. He beginneth to preach. He called some disciples. He teacheth in the synagogue. First verse say, Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted for 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Again the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them, and saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan. It is written, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered unto him. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee, and leaving Nazareth he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast in the borders of Zebulun and Nephthalim, that is might be fully fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, The land of Zebulun and the land of Nephthalim, by the way of the sea beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. From that time, Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee, their father, mending their nets, and he called them, and they immediately left the ship and their father, and followed him. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.
And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. मत्ती 4 अध्याय। मत्ती रचे सुसमाचार। चौथा अध्याय, यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित हो रहेगा। तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु की सेवा कार्य का आरंभ। 12 वचन से आगे। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया, और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जबदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु का रोगियों को चंगा करना। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को जो
नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकपुलस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। मत्ती रचित उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 9। God blesseth Noah. Blood and murder are forbidden. God's covenant signified in the rainbow. Noah is drunken and mocked by Ham. He pronounceth a curse on Canaan and blessings on Shem and on Japheth. He dieth. And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea. Into your hand are they delivered. Every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. And surely your blood of your lives will I require. At the hand of every beast will I require it, and at the hand of man, at the hand of every man's brother, will I require the life of man. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God made he man. And you be ye fruitful and multiply, bring forth abundantly in the earth, and multiply therein. And God spake unto Noah and to his sons with him, saying, And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you, and with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you, from all that go out of the ark to every beast of the earth. And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood, neither shall there any more be a flood to destroy the earth. And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you, and every living creature that is with you, for perpetual generations. I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud, and I will remember my covenant which is between me and you, and every living creature of all flesh, and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. And the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. And God said unto Noah, This is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth. And the sons of Noah that went forth of the ark were Shem and Ham and Japheth, and Ham is the father of Canaan. These are the three sons of Noah, and of them was the whole earth and overspread. And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard, and he drank of the wine, and was drunken, and he was uncovered within his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward
and covered the nakedness of their father, and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him. And he said, Cursed be Canaan, a servant of servants. Shall he be unto his brethren? And he said, Blessed be the Lord God of Shem, and Canaan shall be his servant. God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem, and Canaan shall be his servant. And Noah lived after the flood 350 years, and all the days of Noah were 950 years, and he died. Chapter 10. The generations of Noah, the sons of Japheth, and of Ham, Nimrod, the first monarch, the descendants of Canaan, the sons of Shem. First verse. Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth. And unto them were sons born after the flood. The sons of Japheth, Gomer, and Magog, and Madai, and Jovan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. And the sons of Gomer, Ashkenaz, and Raphath, and Togarmah. And the sons of Javan, Elisha, and Tarshish, Kittim, and Dodanim. By this were the isles of the Gentiles divided in their hands, every one after his tongue, after their families in their nations. And the sons of Ham, Cush, and Mizraim, and Hod, and Canaan. And the sons of Cush, and and the sons of Cush, Seba, and Havilah, and Sabath, and Rama, and Sabteka. And sons of Rama, Sheba, and Dedan. And Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Akkad, and Calne, in the land of Shinar. Out of that land went forth Ashur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Kala, and Resen. Between Nineveh and Kala, the same is a great city. And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Nephtuhim, and Pathrusim, and Kasluhim, out of whom came Philistim, and Caphtorim. And Canaan begat Sidon his firstborn, and Heth, and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite, and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite, and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite. And afterward were the families of the Canaanites spread abroad. And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gazer, as thou goest unto Sodom and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha. These are the sons of Ham after their families, after their tongues, in their countries and in their nations. Unto Shem also, the father of all the children of Eber, our brother of Japheth, the elder, even to him were children born. The children of Shem, Elam, and Ashur, and Arphaxad, and Lod, and Aram. And the children of Aram, Uz, and Hul, and Geder, and Mash. And Arphaxad begat Salah,
and Salah begat Eber. And unto Eber were born two sons. The name of one was Peleg, for in his days was the earth divided, and his brother's name was Joktan. And Joktan begat Almodad and Shelef and Hazar Mawait and Jerah and Hadoram and Uzal and Dikla and Obal and Abimael and Sheba and Ophir and Havilah and Jobab. All these were the sons of Joktan, and their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar, a mount of the east. These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations. These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations. And by this were the nations divided in the earth after the flood. Chapter 11. One language in the world. The building of Babel and confusion of tongues. The generations of Shem and of Tema and of Terah. Terah goeth from Ur to Haran. First verse say, and the whole earth was of one language and of one speech. And it came to pass as they journeyed from the east, and they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there, and they said one to another, go to, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, go to, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. These are the generations of Shem. Shem was 100 years old, and begat Arphaxad 2 years after the flood. And Shem lived after he begat Arphaxad 500 years, and begat sons and daughters. And Arphaxad lived 35 years, and begat Salah. And Arphaxad lived after he begat Salah 403 years, and begat sons and daughters. And Salah lived 30 years, and begat Eber. And Salah lived after he begat Eber 403 years, and begat sons and daughters. And Eber lived 34 years, and begat Peleg. And Eber lived after he begat Peleg 130 years, and begat sons and daughters. And Peleg lived 30 years, and begat Reu. And Peleg lived after he begat Reu 209 years, and begat sons and daughters. And Reu lived 32 years, and begat Serug. And Reu lived after he begat Serug 207 years, and begat sons and daughters. And Serug lived 30 years, and begat Nahon. And Serug lived after he begat Nahor 200 years, and begat sons and daughters. And Nahor lived 29 years, and begat Terah. And Nahor lived after he begat Terah 119 years, and begat sons and daughters. And Terah lived 70 years, and begat Abram.
Nahor and Haran. Now these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor, and Haran begat Lot. And Haran died before his father Terah in the land of his nativity in Ur of the Chaldees. And Abram and Nahor took them wives. The son of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and the father of Iscah. And Sarai was barren, she had no child. And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter in law, his son Abram's wife, and they went forth with them from Ur of the Chaldees to go into the land of Canaan, and they came in unto Haran and dwelt there. And the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. उत्पत्ति 9 अध्याय 10 अध्याय 11 अध्याय हम पढ़ेंगे पहले वचन से। परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। पहले वचन से, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंध से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फलो फूलो और बढ़ो, पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनैले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। नूह और उसके पुत्र। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले, वे शेम, हाम और यपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही है, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ, और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया।
तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा पे लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। नूह की वंशावली 10 अध्याय। नूह के पुत्र शेम, हाम और यपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। यपेत के पुत्र गोमेर, मगोग, मादै, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए। गोमेर के पुत्र अशक, नज, रीपत और तोगरमा हुए। और यावान के वंश में एलीशा और तरशीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बंट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, फूत और कनान हुए। और कुश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबूतका हुए। और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया और निनवे, रोहबोतीर और कलह को, और निनवे और कलह के बीच जो रेसेत है उसमें भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही और पत्रूसी, कसलूही और कसोरी लोग हुए। कसलूहियों में से तो पलिश्ती लोग निकले। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सीदोन, तब हित्त, यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोयोम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में ये ही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। शेम जो सब एबर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुआ। शेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। आराम के पुत्र ऊस, हुल, गेतेर और मश हुए। और अर्पक्षद ने शेलह को, और शेलह ने एबेर को जन्म दिया। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बंट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। और योक्तान ने अलमोदाद, शेलेप, हसरमावेत, यदोरवाम, ओजाल, दिकला, ओबाल, अबीमायल, शाबा, ओपीर, हवीला और योबाब को जन्म दिया। यही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ।
शेम के पुत्र ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने ये ही है और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियाँ ये ही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियाँ इन्हीं में से होकर बंट गई। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। अध्याय 11 पहले वचन से। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली। शेम की वंशावली यह है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उससे अर्पक्षद का जन्म हुआ। और अर्पक्षद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उससे शेलह का जन्म हुआ। और शेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उससे शेलह का जन्म हुआ और शेलह का जन्म के तत्पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 14 वचन से आगे। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ और एबेर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ और सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब नाहोर
29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ, और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तेरह की वंशावली यह है। तेरह से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यस्का दोनों का पिता था। सारै तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सराय जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को बाइबल स्टडी का प्लान होकर चलाने वाले हैं। हमने अब 2 साल का जो बाइबल रीडिंग प्लान है उसको हम बताएंगे, उसके अंदर क्या अध्याय और वचन दिया है। आपने उसको लेना है और अपना पर्सनल बाइबल स्टडी में उसको आज पूरा करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। आप उसको पर्सनल बाइबल स्टडी में ले लेना है। आपने उसके विषय में अपने लिए परमेश्वर खुद के लिए क्या कहता है, उन वचनों के अंदर से आपने उसकी ओर ध्यान देना है। ये बात हमेशा ध्यान रखो, ये वचन हमने पहले जो 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान है उसमें हम पढ़ चुके होते हैं, और दूसरा जो 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान जो है उसके अंदर वही पहले वाला 1 ईयर वाला ही रिपीट किया जाता है। तो हमने पढ़ चुके हैं फर्स्ट टाइम, और दूसरी टाइम जब 2 इयर्स का बाइबल रीडिंग प्लान आता है तो अब हमको वही वचनों को स्टडी करने का मौका मिलता है। ओके, हम पर्सनली हमारे लिए परमेश्वर क्या बोलता है हम नोट्स बना सकते हैं, और उसके बाद उसके अनुसार अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं, और अपने ज़िंदगी के अंदर की ज़रूरतों के समयों के लिए भी हम उन अध्यायों का कैसा इस्तेमाल करना है सीखते हुए चलेंगे। ओके, और बहुत बढ़िया सा अभिषेक उसके अंदर से रिलीज़ होगा। हम जो नहीं कर पाए, जो नहीं कर सकते हैं, वो सब सीक्रेट्स परमेश्वर से हमको मिलता रहेगा। आराम से ये छोटा छोटा बाइबल स्टडी प्लान 2 इयर्स के बाइबल रीडिंग प्लान को हम छोटा सा बाइबल स्टडी सेशन कर देंगे। ओके, हम उसको बाइबल स्टडी अपना पर्सनल करना है। आपने खुद अपना अकेले में बैठकर उसको स्टडी करना है। अलग अलग बाइबल के ट्रांसलेशंस को आप पढ़ के देखना है, और उसके बाद उसके ऊपर प्रचार को सुनना है। अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती है तो फिर आप अलग कोई प्रचारक को ऐसे देखो जो इस विषय के ऊपर कुछ बातें किया होगा। ऐसे धीरे धीरे आपको पुस्तक पढ़ना, इस विषय के ऊपर आप खोज के देखिए। अगर कोई पुस्तक आपकी भाषा में इस विषय के ऊपर लिखी है तो इस प्रकार से आपको अपने अंदर परमेश्वर के वचन का वो माहौल बढ़ाना है, एक्सपांड करना है, विस्तारित कर देना है उसे। आपको थोड़ी सी जानकारी होगी एक वचन की, अब उसको विस्तार में बढ़ाना है। ओके, जितना जानकारी है आपके पास वचन की, उतना आप स्थिर हो जाते हैं। आप जितना उसे विस्तारित कर देंगे जानकारियों में, वचन की जानकारियों में, आप स्थिरता में और मजबूत हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे। ओके, और बलवंत होंगे। आपका आत्मा एक बहुत ज़्यादा ताकत को लेकर चलना शुरू करेगा। बहुत ज़्यादा मतलब आप उसको नाप नहीं सकते हैं। इतनी मजबूती आपके आत्मा के अंदर। शरीर की मजबूती तो आपको पता है, खाने से, विटामिन से, एक्सरसाइजेस से, ओके, और हेल्दी रहने से, हैप्पी रहने से, ये सब शरीर का है। लेकिन आत्मा का जो ताकत है, बल है,
वो वचन है। तो जितना वचन को अपने अंदर आप विस्तार होने देंगे, फैलने देंगे अपने सोचों में, उसको जितना ज़्यादा दूरी तक आप फैलने देंगे वचन को, उसकी जानकारियों को, एक एक वचन का जानकारी को जितनी दूरी तक आप फैलने देंगे, यानी 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, 20-20, 24-24, कभी कभी 8-8 दिन, महीनों, सालों, जितना समय लगाओगे आप उसमें रहने का, सीखने का और ज़्यादा इकट्ठा करने का वचन का बात, तो आप उसके अंदर स्थिरता, मजबूती, आत्मा के अंदर वो बल तैयार हो जाता है जिससे शैतान डरता है। ओके, जिससे बीमारियाँ डरती है। यही वो जगह है असंभव को संभव कर देता है। यही वो प्लेटफॉर्म है विश्वास को आगे बढ़ने का रास्ता देता है। और जहाँ आशा टूटने का समय रहता है, नया आशा हमारे अंदर वो उत्पन्न करता है। और यही काम के लिए पवित्र आत्मा हमारे पास आया हुआ है। हम में वो लगातार, हमेशा के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए हम में वो निवास कर रहा है। इसकी वजह से हमको वो पवित्र आत्मा वचन ही सिखाएगा और हमने वचन ही को सीखना है और वचन ही का माहौल हमारे सारे समयों के अंदर विस्तार में बढ़ाना है। उठते हुए वचन, बैठते हुए वचन, सोते हुए वचन, जगह जगह वचन। यहोशू को यही बोला था कि अपने हृदय से, मन से, आंखों से वचन ओझल होने नहीं देना, लुप्त होने नहीं देना। जब ये वचन लुप्त होता है तब सारा नेगेटिव एंट्री करने शुरू हो जाता है, अफेक्ट करने शुरू होता है। ओके, तो आपको ये वचन है जो आपका ढाल भी है, तलवार भी है, कमरबंद भी है और पैरों के शांति को, सुसमाचार के जूते जो पहन के हम जाते हैं वो भी है, उद्धार का टोप भी है। ओके, और पीछे से रखवाली करने के लिए स्वर्गदूत को कारण भी आपके अंदर का वचन है। ओके, दाहिने बाएं मुड़ने के वक्त में भी आपको वचन ही दिखाई देगा। ओके, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर जो बाढ़ा होता है वो भी वचन ही बाढ़ा बनेगा। ठीक है, तो बेनिफिट्स करोड़ों से भी ज़्यादा है, गिनती नहीं कर पाएंगे। अनगिनत बेनिफिट्स है वचन में विस्तार से जानना। ओके, तो इसकी वजह से ये लाभ उठाइए। हमको अपना स्टडी सेशन बनाना नहीं आता है। जब मैं स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ तो मैं अफलातुन स्टडी करती हूँ, यानी अगर बैठ गई तो ख़त्म। वो कितने महीने और कितने घंटे और कितने सालों तक मैं उस वचन का विस्तार बढ़ता जाता है मेरे अंदर। एक ही वचन को लेके सालों साल मेरे बीत जाते हैं, इतना कुछ मुझे मिल जाता है। ओके, तो ये तरह से हमारे अंदर का माहौल उजियाले से भर जाता है, अंधियारा ख़त्म होता है। अज्ञानता अंधियारा है। हमको वचन का इस्तेमाल नहीं करने आना, ये अज्ञानता है। हमको वचन अगर मालूम पड़ा तो उसका इस्तेमाल भी करना है और वो इस्तेमाल तभी होगा जब हम उसको विस्तार होने देंगे, हमारे मन में उसको बढ़ने देंगे, उसकी फसल और ज़्यादा उमड़ उमड़ कर और ज़्यादा जानकारियाँ वो वचन के विषय में हमको प्राप्त होती रहेगी। ये सीक्रेट रास्ता है जो हमको फास्टिंग से, प्रेयर से मिलता है। हमारा शारीरिक ध्यान हट जाता है। तो ये प्रार्थना सेशन में ये फ़ैसला जब हमने किया है, तो ये प्रार्थना सेशन जब 7 दिन ख़त्म होते हैं उसके वक्त में आपको वो अभिषेक कंटिन्यू रहेगा जो आप इस समानता से वचन का पीछा करते हुए विस्तार में बढ़ते हुए जाएंगे, सूखेंगे नहीं। ओके, और सूखना नहीं है। सूखने के लिए विरोधी सारी कोशिशें करेंगे। ओके, और आपको सूखना नहीं है। आपको निश्चय रखना है, चाहे दुनिया घूम जाए कहीं पर भी, तो भी मेरा निश्चय यही है कि मैं वचन के विस्तार करने में दौड़ता जाऊंगा। ओके, एक पास्टर शुभ संदेश के ऊपर 2 बजे का जो हमारे
अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ का वचन ख़त्म हो जाता है तो 3 बजे से उनकी शुरुआत होती है। तो उनके वचन को भी मैं सुनती हूँ क्योंकि उनका वचन के आधार से जो कहना है वो बिल्कुल सही बोलते हैं। हमको सही बोलने वाले लोग चाहिए। ओके, पास्टर क्रिस ओयाखिलो में एकदम सही बताते हैं। जोसेफ प्रिंस एकदम सही बताते हैं। ह्यूबर्ट एंजल, प्रॉफिट शेपर्ड बुशरी एकदम बिना कोई मिलावट बता देते हैं। ओके, तो हमारे लिए हिंदी में अगर हमको जानना है तो यही सही बातें आपको एएनएम मिनिस्ट्री के 2 बजे के प्रोग्राम में शुभ संदेश में देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी और कोई प्रचारक हमारे इंडिया में मुझे दिखाई दिए, वो बहुत सारे हैं। एक रिकी थापा बोलकर आते हैं। ओके, वो भी सही जानकारी दे रहे हैं। और 3 बजे के ये पास्टर हमेशा जो वो बोलते हैं वो एकदम सही जानकारी बोलते हैं कि हमको और कोई दुविधा में पड़ने नहीं देते हैं कि यहाँ तो ये लिखा है और ये वैसे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, वो भावनात्मक नहीं बोलते हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वचन बताते हैं। ओके, तो ऐसे और वो भी जो विक्ट्री प्रोग्राम बोलकर आते हैं वो सुबह आते हैं। ओके, तो उनका भी आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। ठीक है, आपको ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इंग्लिश के प्रचारक नहीं है, ये हिंदी में आपको शुभ संदेश चैनल पर मिलता है। आपको ये सही ढंग से लेना है और उसको आप नोट्स बनाना है और आप वो नोट्स बनाकर उसके ऊपर अपने मन को लगाना है और बाकी बातों को उसको कमज़ोर करने नहीं देना है। यानी अगर अगर तो परंतु लेकिन ऐसा थोड़ी रहता है। ऐसे अविश्वास के संभव होने वाले कोई बातें नहीं करना है। ओके, आपको अगर असंभव की बातों में विश्वास है तो संभव होने वाली बातों पर भी आपको समझ में आना चाहिए विश्वास करने की ज़रूरत है। ओके, संभव के ऊपर आपको क्यों विश्वास हो गया? क्योंकि आपने वैसे माहौल को देखा है, इसके लिए आपको विश्वास हो गया। लेकिन हमने असंभव को देखा है, इतना मजबूत हो गए विश्वास में। अभी संभव के माहौल को हमने खुद जगाना है, हमने खुद उसको स्टर करना है, हमने उसको क्या कहते हैं उसे, उसको खटखटाना है और ज़बरदस्ती उसको हम में काम करने के लिए उत्तेजित करना है। हमने अपने आप को उसमें उत्तेजित करना है कि हम उस वचन की गहराई को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कर सके। ओके, ये संभव है, इसको विश्वास करना है। ये संभव है कि रोटियों को मल्टीप्लाई बहुगुणित किया गया था। आज आपके लिए मेरे लिए रोटी ये सवाल नहीं रहना चाहिए। मछली के मुंह से सिक्का निकाला था, आज मेरे लिए आपके लिए पैसा चिंता का विषय नहीं रहना चाहिए। हमारा ट्रैवलिंग हमको कहीं पर भी चिंता का विषय नहीं रहना चाहिए। हमारे प्रार्थना जीवन, अभिषेक में बढ़ना चिंता का विषय नहीं रहना चाहिए। ओके, चिंता नेगेटिव है और वो अंधेरा है और इसका कारण एक ही है कि हमने अविश्वास की भाषा को भी बोला है और अविश्वास में विश्वास भी बनाए रखा है। हम उसको टूटने के लिए अब मजबूर कर देना है। वो कैसे टूटेगा? इस प्रकार से सही लोगों के वचन की आप प्रचार सुनिए और उसको लेके आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, तो बाइबल स्टडी प्लान में आपको मैं बताती हूँ क्या क्या होगा आज। मैथ्यू 2 चैप्टर 13 to 23 और जेनेसिस 4th चैप्टर 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 से 23 वचन और उत्पत्ति 4था अध्याय। तो आपने अब इसको लेना है, ये वचनों को, और आज के दिन में इसे बाइबल स्टडी में ख़त्म करना है और इसको लेके आप प्रार्थना भी कर सकते हैं।
आज के दिन में इसमें से अगर आपको कुछ प्रार्थना का उपज मिलता है, ऐसा कोई मालूम पड़ता है कि ये मुझे प्रार्थना में मांगने की ज़रूरत है, तो आप मांगना है, इसको प्रार्थना में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।